So we'll start with this book. और ये है आपकी यूनिट सिलेबस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2. Second. So what the syllabus, the topics which are this, they are covered entirely in this book of classical theory of fields. Classical theory of fields. Languages. इसकी फर्स्ट वॉल्यूम है मैकेनिक्स की, पढ़ी है, छोटी वॉल्यूम. So it's also good book. You can read it. You can read that in conjunction to this book. ठीक है? उसका एक अपना एक होता है ना फ्लेवर. जैसे कोई सीरीज पढ़ोगे आप बुक, एक बुक पढ़ोगे उसकी उसी ऑथर की दूसरी बुक पढ़ोगे, तो एक नोटेशन एंड अदर थिंग्स दे somehow follow each other. If you follow Jackson, तो वो अपना अलग है. वो गोल्ड स्टीन, वो अपना अपना एक होता है ना एक वे. So in this book, what we are going to just mainly concentrate on is इसका chapter 1, 2, 3, 4, 8 and 7. Okay. So this is going to be our उसको क्या कहते हैं, modus operandi, how we are going to operate on. So we are going to sequentially line by line, page by page, try to cover these chapters of the book, which will cover this block cell that outlines. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. So now today what we are going to do is we are going to start with the beginning. वो कहते हैं ना, there is a beginning to the beginning, है ना. We are going to start from the start. So but starting from the start ये है कि there are हम क्या कहते हैं, there are prerequisites for even prerequisites. Well, I assume that you might have studied electrodynamics जो भी है in your lower semesters, whether Griffith or Jackson, जो भी related concepts हैं, I'll start from that. Okay. So if you find some of it's difficult, either you concentrate more or sometimes आपका जो earlier concept है वो रह जाता है. So it's वो डरने की बात नहीं, you just go to the previous concept which has not been cleared to that extent. ठीक है? हाँ, come. So this much it's clear. So now you might have studied you start with principle of relativity. Principle of relativity you might have studied separately. Postulates of special theory of relativity. But historically the subject of relativity has developed. The subject of relativity has developed in close, which I yesterday was saying, in the way subject of electrodynamics was developed. इसमें what was the fundamental thing? The fundamental thing was जो Galilean invariance law है for the transformation of velocities. है ना? अगर दो रेफरेंस फ्रेम है, वेलोसिटी ऑफ एडिशन u प्लस जैसे u प्राइम, दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, तो आप अगर देख रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम दे विल सिंपली add up, they will simply without any what I should say without dependent upon from which reference frame you are observing a given event. ठीक है, वही है ना velocity, Galileo's velocity addition rule. That Galileo's velocity addition rule was found to be not an exact law.
it was replaced by a postulate of relativity, that when particles go at higher speeds, ठीक है, that v plus u has to be modified by a factor of 1 by root of 1 minus v square by c square, such that at smaller velocities that factor जो होगी second term वो neglect करेंगे, ठीक है, it will reduce to the Galileo's velocity addition rule. But at higher velocities you have to take those corrections also into consideration, ठीक है. This is simple summary of it. अब ये है कि so we are going to follow this book. So he starts with velocity of propagation of interaction. कोई भी प्रोपेगेशन स्पेस में है ना, propagation of interaction. Before you are going to say what is going to propagate and what is interacting, there is a fundamental notion. कोई चीज़ interact कर रही है, किस में कर रही है? शावर स्पेस में कर रही है. कोई चीज़ interact कर रही है when you have a notion. So it's also when you say interacting, this also space में है तो. So जो velocity of propagation of interaction है, it's interdependent on how we construct space and, or rather how we measure space and time. Space time को हम फंडामेंटली कैसे मेजर करेंगे, ठीक है. और बुक्स यू माइट सी कि टाइम बेसिकली जब स्पेशल रिलेटिविटी की लैंग्वेज आती है इसे क्लॉक्स, ठीक है. जहाँ जहाँ क्लॉक होगा आप समझो कि टाइम का मेजर होगा, ठीक है. या स्पेस इंटरवल हम कहते हैं, ठीक है. इसको हम लाइन एलिमेंट से भी डिनोट करते हैं, डी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं. तो नॉर्मली वी यूज क्लॉक्स एट लेंथ्स, इसको हम लेंथ्स के डिनोट करते हैं. इस पर बुक्स में यू गो टू एनी बुक ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और दिस बुक, सो वी सी स्पेस इज डिनोटेड नॉर्मली एज लेंथ और टेक्निकल वर्ड इसका है क्लॉक. टेक्निकल नहीं, जो पॉपुलर वर्ड जो व्हाटएवर दैट इज. अब मसला ये है कि व्हाट इज दैट जब हम मेजर करते हैं न्यूटन मैकेनिक्स में स्पेस को और टाइम को, ठीक है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन वी ट्राई टू मेजर स्पेस एंड टाइम इन रिलेटिविटी. कोई फंडामेंटल डिफरेंस है कि नहीं है? विच माइट बी नोइंग. एंड हाँ, टाइम का मेजरमेंट इज डिफरेंट. मे बी आई जस्ट कम टू सो स्पेस एंड टाइम का. अब इससे बिफोर ये है कि बिफोर यू आर गोइंग टू मेजरमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम, हम नॉर्मली एक रेफरेंस फ्रेम लेते हैं, उसको कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ. व्हाट वाज दैट फ्रेम? माइट हैव स्टडीड इन योर क्लासेस that if you want to have measurement of any event, any velocity, acceleration from a given reference frame, it should also not, if you measure the same thing from another reference frame, there should not be no contradiction. There should be no contradiction in Newtonian, what I should say, how Newton's this frame of reference, Newtonian frame of reference, where the notion of space and measurement of time हम एक तरीके से करते हैं. I'll just try to explain. Such that अगर two reference frame हैं, they are going to measure an event in space, they should not disagree with regards to the measurement, with regard to the. While in case of जब आइंस्टाइन इसमें करते हैं टू इवेंट्स, इफ दे आर मेजर्ड बाय टू रेफरेंस फ्रेम, अगर हमने इनमें प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किए, प्रॉपर
we have to make a Lorentz invariant reference frame. तभी हमारे measurements will not disagree. Otherwise, we'll get contradictions. Otherwise, we'll get. Why we are going to get contradictions is basically जो हमारा definition of space measurement है and जो definition of time measurement है in Newtonian system and in Einsteinian system different है. How we measure a given interval in Newton's frame or in special relativity में हम measurement अब उसमें ये है कि न्यूटनियन फ्रेम में जो मेजरमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम है ना इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द और हिज लोकेशन इन स्पेस. जो टाइम का मेजरमेंट है, टाइम मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है इज सेम फॉर all intervals in space. जो हर पॉइंट इन स्पेस है ना या हर पॉइंट का क्लॉक होगा ना वो सेम होगा. अगर मैं यहाँ 4 बजे है, यहाँ भी 4 बजे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा. My location in space will not affect my measurement of time. This is simply subtle point. ठीक है, मैं कहाँ पर हूँ इट विल नॉट जो मेजरमेंट ऑफ टाइम है इंटरवल है इस पर असर अंदाज नहीं होगा. वाइल इन केस ऑफ आइंस्टाइन टाइम द मेजरमेंट ऑफ दैट इंटरवल डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम वेयर such that if two events have to be agree on a गिवन पॉइंट, इसको आइंस्टाइन ने कहा था मैट्रिक साइमल्टेनिटी. मैट्रिक साइमल्टेनिटी इधर द टू इवेंट्स, जैसे यहाँ इवेंट हो रहा है, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू शुड बी सेम और देन देयर विल बी नो कॉन्ट्रडिक्शन. बट अगर इफ द डिस्टेंस इज नॉट सेम, सो व्हाट आई एम गोइंग टू मेजर एट सम पॉइंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वर इज गोइंग टू मेजर द इवेंट एट द सेम पॉइंट, but they have different locations in space, so their measurements will disagree. Why their measurements will disagree? Because in Newtonian time जो each point in space है, जो clock है ना, clock का value आता था same per point. But once you go to Einstein measurement of time, the measurement of time depends upon from where you measure time. So if there is a distance, यहाँ एक है, दूसरे point वहाँ पर है, तो उससे फर्क आता है. ठीक है, गवर्नमेंट पॉइंट. इसमें थोड़ा सा वो एट योर प्लेस थोड़ा घर पर सोचने की जरूरत है. ठीक है, धीरे धीरे समझ आता है गवर्नमेंट पॉइंट. अब ये है कि हाँ ठीक है, so this is the first part, the principle of relativity. अब ये है कि if you just go to the book, अब ये है कि I just write a statement of this book and then try to explain. For example, he says कि in classical mechanics, distances is already relative. So what do you do by it? The special relations between different events depend on a system of reference
they are described. Which I will tell you. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि two non simultaneous events occur at one and same point in space. So what do you mean by two non-simultaneous events? What does he want to say? Two non-simultaneous events occur at the same point in space. एक होता है कि साइमल्टेनियस इवेंट, मतलब एक इवेंट होगा मतलब उसी टाइम पे दूसरा इवेंट होगा, ठीक है, दिस इज साइमल्टेनियस. आई हैव ऑब्जर्व, अब लाइट ऑन किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया, ऑन किया, मगर जो दूसरा बंदा है उसने उसी वक्त ऑब्जर्व किया, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिले. दैट्स द पॉइंट, दैट्स नॉट साइमल्टेनियस. इट्स अगर 1 बजे 1 मिनट पे ऑब्जर्व किया, उसी ने भी 1 बजे 1 मिनट किया. दिस इज न्यूटनियन टाइम. साइमल्टेनियस अब यही है, टू नॉन साइमल्टेनियस इवेंट्स ऑकर at one and the same point in space. अब यही है this is subtle point. Newton, two non-simultaneous events, even though they are not happening simultaneously, they can occur at one and the same point in space. This is also a contradiction. मतलब आप इसको सोचो, आप मतलब इन non-simultaneous events can happen at the same time. This was the Newtonian construction. ठीक है, क्योंकि हमने टाइम का मेजरमेंट लिया था सेम फॉर एवरी पॉइंट इन स्पेस. सो इस वजह से अगर हम नॉन साइमल्टेनियस इवेंट्स की को भी हम उनका टाइम भी सेम हो सकता है. दिस इज द पॉइंट. बेसिकली ये कह रहा है कि जो स्पेशल रिलेशंस है, स्पेशल रिलेशंस किसको कहते हैं? स्पेशल रिलेशंस. स्पेशल मीन्स डिस्टेंस x1, x2, x3. फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे मेजर करते हैं इवेंट्स? जो इवेंट है ना, इवेंट क्या होता है बेसिकली? इवेंट मीन्स कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका स्पेस कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका टाइम कोऑर्डिनेट भी होगा. दैट कंस्ट्रक्ट्स इवेंट, है कि नहीं? इफ इट मूव्स इन स्पेस एंड टाइम, अगर फर्स्ट ऑर्डर वेलोसिटी होगी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होगा तो वेलोसिटी होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होगा तो एक्सेलरेशन होगी. तो इफ इट मूव्स, सो वी आर ऑब्जर्विंग एन इवेंट हैपनिंग, अ बॉडी इज मूविंग, बट वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस फ्रेम व्हिच इज सपोज्ड टू बी इनर्शियल, व्हिच इज सपोज्ड टू बी नॉन एक्सेलरेटिंग. ठीक है, गॉट माय पॉइंट. सो अगर दो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स होंगे, they are going to, in Newtonian mechanics, observe the same event. They should observe it without any contradiction, because एक तो special relations depend upon the system of reference. They also describe. So this is the point that I am going to say. This statement के साथ ही go to the book, he says that the properties of time are assumed to be independent of system of reference. There is
one time for all reference frames. We are not talking of relativity का जो reference frame, we are talking of Newton. So Newton एक तो ये है कि you can observe this thing and जो वो होगी special properties of time are assumed to be independent of the reference frame. So our measurement of time in Newtonian mechanics is independent of ये सेम ही रहेगा आप किसी भी रेफरेंस से वो इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है ठीक है इट डजंट मैटर तो अगर दो रेफरेंस फ्रेम है सिर्फ ये गैलीलियन रेफरेंस फ्रेम में है कि इफ दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व इवेंट जैसे एक चीज़ मूव कर रहा है ठीक है दूसरा चीज़ भी द अदर जो आपने 11th क्लास में प्रॉब्लम की ना अगर एक वेलोसिटी एडिशन रूल है ना अगर एक यहाँ से आ रहा है दूसरा वहाँ से विल माइनस आएगा प्लस इफ दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन विल ऐड v प्लस यू दो ट्रेन है ना अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे वो आर गोइंग टू सबट्रैक्ट अगर एक ट्रेन 40 किलोमीटर से आती है दूसरी ट्रेन वहाँ से आती है 40 किलोमीटर द ऑब्जर्वर इन द ट्रेन विल ऑब्जर्व इट 80 किलोमीटर से है ना वो ज़्यादा फास्ट मूव करती है बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अगर सेम वेलोसिटी वो भी होगा तो इट विल सीम्स एज इफ दे आर एट रेस्ट है ना टू साइकिल अगर दो साइकिल वाले चल रहे हैं ना सेम वेलोसिटी के साथ तो उनको लगेगा हम रेस्ट पे ठीक है अगर एक थोड़ा फास्ट चलेगा एक कम चलेगा वी हैव टू सबट्रैक्ट इट फॉर द ऑब्जर्वर और दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन वी हैव टू ऐड इट ठीक है दिस इज नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन रूल सिंपल रूल ठीक है स्पेशल रिलेशंस को हम कैसे एडजस्ट करते हैं फॉर आवर मेजरमेंट्स इन स्पेस में इवेंट्स कैसे हम देखते हैं मगर इन केस ऑफ टाइम जो है ना टाइम की प्रॉपर्टीज ऑफ टाइम और इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ वहाँ एडिशन माइनस नहीं होता है टाइम का जो वैल्यू है न्यूटन फ्रेम या याद रखना है इसको सोचना इट इज सेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना चलो so he has given if you go to the book he has for example given the example उसमें दी है आप यहाँ से जाकर just read that paragraph ठीक है he has taken simply दो रेफरेंस दिए हैं ऐसे एक रेफरेंस ऐसे x y z y फ्रेम z फ्रेम now he is coming to relativity sorry this is in the context of Newtonian context ठीक है now we are coming to relativity में ये है कि our measurement of time will depend upon which frame of reference you are using जैसे आपने सुना है ना moving bodies clocks they run slower or faster हाँ ठीक है जो फास्टर heavier masses की so you can see it moving is but for a given reference frame so अब वो है कि that example how we can conceptualize in the sense that if we want to have measurements of two reference frame such that the measurement of properties of time are not independent of the system of reference they are अगर मैं यहाँ आई एन को वापस इसको मैं करूँगा ये था ना इंडिपेंडेंट अब मैं करूँगा डिपेंडेंट तो थिंग्स विल चेंज फॉर अस ठीक है तो हिस्टोरिकली अगर आप देखो इसमें बहुत सारे लोग हैं अबाउट लोरेंस पॉइंटियर ठीक है आइंस्टाइन बहुत सारे लोग हैं हम किताबों में ज़्यादा आइंस्टाइन को पढ़ते हैं बट देयर हैव बीन मेनी पीपल which were associated with the notion of this the time is not absolute ठीक है the measurement of time इसका एक ही वैल्यू नहीं है it is वही हो गया it is relative to what relative to the reference frame or the observer who is observing the given event so our measurement of time is relative to the measurement of the observer from where he is observing the event in relativity
In Newtonian frame, it was independent. In Einsteinian frame, it is dependent. ठीक है? So the simple example which he has given in the book is, for example, अगर हम दो reference frame लेते हैं, reference frame X and reference frame X prime. ठीक है? ये B, ये A, ये C. ठीक है? अब ये है कि he is taking two reference frames K and K prime. ठीक है? एंड ए का कोऑर्डिनेट है X, ये Y है, ये X Y, ये Y प्राइम है, ये Z प्राइम. तो देयर आर टू रेफरेंस फ्रेम, एक है X Y एंड Z. ठीक है? X Y Z एक्सिस, एंड दूसरा रेफरेंस फ्रेम X प्राइम Y प्राइम. आप यू कैन ऑल्सो टेक देम एज टू ऑब्जर्वर्स ऑल्सो मेजरिंग एन इवेंट. ठीक है? न्यूटन फ्रेम में इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट रेफरेंस फ्रेम. बट यहाँ पर क्या है, अगर दो रेफरेंस फ्रेम्स हैं, K है, वन रेफरेंस फ्रेम इट्स बीइंग डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेट्स X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम, ये K प्राइम हो गए, और K जो है इट्स डिनोटेड बाय X. अब ये अब मसला यहाँ पर आता है, फॉर एग्जांपल मसला हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अब कोई सिग्नल होती है, सिग्नल टॉर्च है ना, ऐसे टॉर्च को करोगे तो विच यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व. ठीक है? तो अगर एक रेफरेंस फ्रेम में चलो रिलेटिवली टेस्ट है, ठीक है, इस रेफरेंस फ्रेम में फॉर एग्जांपल इट्स गोइंग दिस डायरेक्शन. यहाँ पर लाइट है, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. तो वही है ना स्पेशल थ्योरी का पॉसिबिलिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, वही बात हम दूसरी तरीके से कहते हैं, द वेलोसिटी मेजर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस वेलोसिटी ऑफ सोर्स और दैट ऑफ एन ऑब्जर्वर, ऐसे ही कहते हैं ना. अब ये है कि अगर कोई ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दूसरा दिस कोऑर्डिनेट, दो यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम है, तो हम कोई इवेंट यहाँ से कोई वेलोसिटी या कोई जो सिग्नल है ट्रैवर्सेस टू द अदर डायरेक्शन. ठीक है? दिस डायरेक्शन. मगर अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसका एक इस डायरेक्शन होगा, दूसरा दूसरी डायरेक्शन में होगा. ठीक है? सो अगर कोई ये क्लोजर तो आएगा ना, मतलब इफ इट्स मूविंग अवे फ्रॉम गिवन रेफरेंस फ्रेम, so the time it will take to record that signal will be more as compared to the person जिसकी तरफ कोई लाइट का सिग्नल आ रहा है. ठीक है? फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग लाइट सिग्नल, यहाँ पर कोई दौड़ के मुझे फर्स्ट आ रहा है फास्ट, मगर कोई मेरे से यहाँ से जा रहा है वापस, कोई इवेंट, टू इवेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन टू डिफरेंट वेज. एक भाग रहा है एक रेफरेंस से, एक आ रहा है क्लोजर. द मोमेंट ही कम्स क्लोजर तो ही रिकॉर्ड द इवेंट फास्टर एज कंपेयर टू द उतना उतना. यस, दैट्स he has given this example. आप इसमें इस एग्जाम्पल को इसने ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है? इफ़ यू गो टू बुक बाय दिस, क्या नाम है, रॉबर्ट रेसन की बुक है रिलेटिविटी. ठीक है? चैप्टर 2 और 3 he has tried to explain this subtle fact. आप इस पर भी you just read from this paragraph. If you don't understand it, you go to that reference. ठीक है? उसने ये ही हैज़ ट्राइड टू एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल अगर हम दो एग्जाम्पल ऑफ दिस, अगर हमारे पास कोई रॉड होगी ऐसे, ठीक है,
तो दूसरी रॉड में तो इसका कुछ पॉइंट हुआ यहाँ, इसका कुछ, सो दे विल हैव एग्जैक्ट जस्ट कॉरस्पॉन्डेंस। अब इसको इधर उधर करो, ये यहाँ आ गया ना, ये यहाँ आ गया, बट फॉर ए पर्सन हु इज ऑब्जर्वर सिग्नल हियर, वो इन दोनों को कहाँ मेजर करेगा? ठीक है, यू नीड अ बिट ऑफ इसको इनिशिएशन, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू जस्ट गो एंड रीड दिस पैराग्राफ, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो बेटर। ठीक है, द पॉइंट इज दैट आवर मेजरमेंट ड्यू टू जो हमारी मेजरमेंट स्पेस है, मेजरमेंट ऑफ एन इवेंट, इफ इट डिपेंड्स अपॉन दैट मेजरमेंट इज डिपेंड अपॉन कहाँ से आप मेजर कर रहे हो, इससे फर्क पड़ता है आपकी मेजरमेंट पे, आप कितना मेजरमेंट करोगे, आपकी मेजरमेंट पे फर्क पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट। इफ वी इंट्रोड्यूस और इनोव द नोशन ऑफ टाइम डिपेंडेड अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग एन इवेंट, it will introduce deviation in our measurements in event। या इवेंट को आप फास्टर इवेंट ऑब्जर्व कर सकते हो या स्लो, पहले या बाद में, जो भी दैट वेरिएशन यू कैन रिकॉर्ड। ठीक है, इफ वी हैव दिस so now we are coming to what's the time कितना है? अब यह है कि यू कैन टेक एन इंटरवल, जैसे आप लाइट है ना, लाइट टॉर्च है, ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं ना, है ना, तो यू कैन इमेजिन दैट लाइट इज मेड ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो इसलिए इट्स बीइंग डिनोटेड बाय कोऑर्डिनेट्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इस तरह इक्वेशंस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो वी कैन इमेजिन, इस तरह अभी हम दो रेफरेंस फ्रेम में एक स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड इट्स बीइंग फॉलोड बाय अनदर स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, एंड नाउ हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मेजरमेंट ऑफ ए गिवन इंटरवल और इंटरवल्स। इफ वी फॉलो द बुक हियर इज द टर्म इंटरवल्स को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। एंड सब्जेक्ट टू द अजम्पशन जो वेव फ्रंट की वेलोसिटी है दैट्स ओनली 3 न्यूटन और जो भी है, जैसे है ना, ये इन ए सेंस कॉमन सेंसिकल इंट्यूशन है ना। फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू बस की छत पे चलोगे, आप कोई पत्थर मारोगे, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ स्टोन विल बी वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ स्टोन, है कि नहीं। बट इफ यू गो ऑन द बस, स्पेशल रिलेटिविटी सेज अगर आप टॉर्च लगाओगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बस की कितनी भी वेलोसिटी होगी ये सी ही आएगा, सी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स एज वेल एज द ऑब्जर्वर। ठीक है, सो इट्स काउंटर इंट्यूटिव। अगर आप इस पर अब ये क्यों नहीं हम देखते हैं, नॉर्मल वेलोसिटीज हमारी स्लोअर है। व्हेन वी गो टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स दीज इफेक्ट्स वी कैन सी देम बेटर। ठीक है, मास इंक्रीज होता है अदर थिंग्स व्हिच यू ऑब्जर्व। अब ये है कि अब इंटरवल्स, अगर हम इंटरवल्स को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे फॉर टू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट हम कांस्टेंट रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट हम कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे पास रेफरेंस फ्रंट के था और के प्राइम था, एंड के इज डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एंड टी। हाँ, यहाँ पर इवेंट होता है एक्स वाई जेड, दीज आर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, एंड इवेंट हैपनिंग एट टाइम टी। एंड रेफरेंस में के प्राइम क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम।
So you can have a spherical wavefront represented by x prime, y prime, z prime, and t prime. The another by x, y, z, t. Okay. So if you have this construction, though and velocity of the signal is this thing, so distance between two, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? So it will be what? Between x2 minus x1 plus y2 minus y1 plus है ना, इस फ्रेम में फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेम में है ना, अगर ये यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ उसकी डिस्टेंस थी x1 x2 ये x1 था, x1 y1 z1 ये था x2 y2 z2, ये ना ये वेव फ्रंट यहाँ से चला यहाँ तक है ना, यहाँ इसका डिस्टेंस था x1 y1 z1 यहाँ से यहाँ तक था, तो जो डिफरेंस ऑफ द टू डिस्टेंस है ना x2 माइनस x1 y2 माइनस z2 ये आपको पता है। एंड अब देखो यहाँ पर इनोवेशन इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल की। वी आर गोइंग टू मेजर डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये सेटल पॉइंट। सो हम वेलोसिटी को लिखते हैं ऐसे, वेलोसिटी को डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं ना, हाँ तो डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। We have tried to measure distance in terms of what? Definition of time. C is the velocity of light which we hold into the constant. तो कितना चला ये wave front, consecutive wave front, ठीक है? So we are going to denote it by how it has moved from c square t2 minus t1 square. T2 हो गया measurement recorded at time 2 and measurement recorded at time T1. ये लेंथ है ना, ये लेंथ ये इसलिए था x2 minus x1, तो हमको इसको पैरामीटराइज किया, we are measuring this distance at time T1 and at time T2, ठीक है। But in classical mechanics that was same, ठीक है, but इसमें ये वैल्यू भी कर सकता है T1 मेजरमेंट ऑफ T2 T1, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और you can write it like this. अब ये है कि एक वेव फ्रंट के लिए यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम, ये तो ये है, यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम के लिए भी आएगा ना ऐसे, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम y2 प्राइम मान ली, अभी कह रहा है कि x1 प्राइम x1 y1 z1 t1 x2 y2 z2 t2 पहले वाले हैं। अब it's the measurement of space at x1 y1 z1 at t1 and x2 y2 z2 t2। तो इस सब को हम, इस चीज़ को हम कहते हैं we denote it by interval between two events s1 2 हम ऐसे इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स को हम ऐसे डिनोट करेंगे। इसको यहाँ लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस आएगा। माइनस x2 माइनस x1 okay. So this in books you can say this is also called interval. It's also called interval between two
matrix. Yeah, this is known as interval between two elements. So from the our postulate of special theory of relativity, तो इसमें ये है कि if the interval between two events is zero in one reference frame, it should also be zero in the another reference frame. ठीक है? So that's the point. Or not only another reference frame but all reference frames. You can generalize it to all coordinate system. अगर x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z2, xn, y1. ठीक है? So अगर interval between two reference frames is zero, so you can extend it to all reference frames. अब ये है कि अब इसमें से सिर्फ ये फ़र्क है कि जो ऑर्डिनरी ज्योमेट्री है ना, ऑर्डिनरी ज्योमेट्री में जो होता है नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है ना, आप देखोगे वो है ना x, y and z. If there is a flipping in the coordinate system, for example x, y, z, if x goes to इस डायरेक्शन में तो माइनस एक्स आएगा. ठीक है? यहाँ वो चीज़ हमने नहीं देखा. ठीक है? तो ये थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शन. दैट्स व्हाई वी डिनोटेड बाय, अगर हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की, जैसे अगर हमने एक इवेंट को एक रेफरेंस फ्रेम में वेव फ्रंट देखा मगर दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस आएगा ना नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एन इमेजिनरी नंबर. हम जो स्पेस इंटरवल है उसको ऐसे डिनोट करते हैं. It's a minor technical point you should remember. That's why books में देखोगे वहाँ when you have this space-time manifold कहते हैं इसको, we normally call it, तो वहाँ हम denoted by imaginary number. जो minus 1 का factor वो iota, that is the minus का factor आता है when you change coordinate transformation in another reference frame. It may flip, the sign में flip. जो आइडेंटिटी है इसमें प्लस माइनस फैक्टर से वो आइडेंटिटी आएगा. कभी कभार हम रखते हैं वो, इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक. कभी अगर जैक्सन आप देखोगे उसकी एक नोटेशन होगी, दूसरी नोटेशन में. So that's why इसमें अगर आप फुटनोट, दिस थिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट, उसका नाम था मिन्काउस्की. उसकी फेमस स्टेटमेंट है. इफ यू गो टू फाइंड इन फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम, उसमें लिखता है नाउ स्पेस एंड टाइम आर नॉट टू बी स्टडीड सेपरेट, दे आर मैरिड टुगेदर. यू नो वन ऐसा समथिंग लाइक दैट. एंड इफ यू से ही सेड द ज्योमेट्री इज कॉल्ड स्यूडो यूक्लिडियन. ज्योमेट्री इज कॉल्ड सीरो यूक्लिडियन इसी वजह से, क्योंकि यूक्लिडियन में अगर हम एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन फ्लिप होता है तो यहाँ साइन एम्बिग्युइटी आती है. सो जिस तरह हम जो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका फ्रेम है रीमान, उसमें फिर आता है सीडसू रीमान. इसके लेटर चैप्टर 8, 9, 10 we are not studying them, but the classical part of it is the same. So we'll do थोड़ा सा करेंगे then we'll stop. बस आज इतना ही. So what you are going